Hello friends, welcome to my channel. So today I am going to discuss practically on synchronization. Okay, so there will be wait method, and I am going to create a class which will have two threads, and that two threads will print the even and odd numbers in the sequence. Okay, like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 10. It will print in the sequence. One thread is printing suppose one number, then second thread will print two number. Okay, so in the sequence they will print the even and odd numbers. Let's create the class. Okay, so in this class test application, what I will create, I will create the logic of even and odd numbers. Okay, so my method even number method. Suppose I am creating one method even number. Okay, and other method will be odd number method. Okay, that will print the odd numbers. Okay, so in this method I have to create the logic in even number and odd number. So let's suppose there is the while loop which will I will have to take the variables. Suppose there is n number which will be 10. Okay, and there will be the and there will be the variable as counter. Int count. Let's put this as 1. Okay, so my while loop will say that while count is less than n number. Okay, my number would be anything. I have put as 10. Okay, 10 नंबर तक मुझे इवन एंड ऑड नंबर प्रिंट करने हैं। तो वाइल लूप में मैंने कंडीशन सेट कर दी है कि मेरा जो काउंटर है वो कब तक चलेगा, जब तक n से नंबर से छोटा ना हो। इसके बाद मैं लॉजिक लिखूंगा वाइल काउंट मॉडुलस ऑपरेटर मीन्स परसेंटेज, मीन्स डिवाइडिंग बाय 2. If modulus gives the remainder, this percentage sign gives me the remainder. Okay, if dividing by 2 is equal to 0 for even number, the remainder is 0. Like 2 dividing by 2 gives 0 remainder, and 4 divided by 2 gives 0 remainder. Okay, so in that, and friends, this would be in my synchronized block. Okay, so what synchronized method says, I have told you in my previous video that this block, this is the synchronized block. In this block I will write this logic, and in the synchronized block I will have to use wait method. Okay, I have told you wait method also, that what wait method do. Wait method is used with synchronized with it, wait method is used inside the synchronized method. Okay, and synchronized method means if one thread enters in this block, synchronized block, then it will all वो तभी एंटर करेगा सिंक्रोनाइज ब्लॉक में जब उसे
उसका ऑब्जेक्ट का लॉक मिलेगा, ठीक है, जिसे हम मॉनिटर लॉक बोलते हैं। मॉनिटर लॉक वही होता है कि ऑब्जेक्ट का लॉक होता है जो उस थ्रेड को मिलेगा, वो तभी उस ब्लॉक सिंक्रोनाइज ब्लॉक में उसका कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उसके अंदर वो एंटर होगा उसी ब्लॉक के अंदर, सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर, जब उसे मॉनिटर का लॉक मिलेगा। तो जैसे ही अगर वेट मेथड है तो वो थ्रेड को उसका लॉक मिल गया है, तो वो तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक वो लॉक रिलीज नहीं करेगा। लॉक रिलीज कब करता है? जब नोटिफाई मेथड हम कॉल करते हैं, तब वो थ्रेड लॉक रिलीज कर देता है, फिर दूसरे थ्रेड को मिलता है। ओके, तो इसके अंदर मैंने प्रिंट करा देना है वेट में डायरेक्ट मेथड कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसको मुझे ट्राई कैच के साथ ओके, इसका ब्लॉक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मुझे ट्राई कैच के साथ इसको ट्राई कैच कर सकते हैं, थ्रोज कर सकते हैं, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। वेट मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। ओके, आफ्टर दैट आई विल हैव टू प्रिंट द नंबर विच विल प्रिंट इवन नंबर। ओके, तो मैं किसको प्रिंट करूंगा? यहाँ पे काउंट को प्रिंट करूंगा। काउंट मेरा जो आएगा वो इवन नंबर होगा, ठीक है। system.out.println में मैंने यहाँ पे ठीक है प्रिंट करा दिया है, मेरा काउंट प्रिंट हो गया। ओके, ठीक, सेम चीज मुझे ऑड नंबर के लिए भी करना है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बाकी चेंज मुझे एक लॉजिक पे करना है बस। यहाँ पे मुझे 0 की जगह काउंट डिवाइडेड बाय 0 की जगह मुझे 1 करना है, ठीक है। मॉडुलस, ये परसेंटेज ऑपरेटर मॉडुलस होता है, यानी कि रिमाइंडर देता है। तो ऑड नंबर का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है हमेशा, ठीक है, तो वो ऑड नंबर कहलाता है। जैसे 3 है, जैसे 1 है, जैसे 5 है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। वेट मेथड यहाँ भी मैंने कॉल किया है, तो वेट मेथड हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक मुझे यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा। सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर ही वेट मेथड हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज नहीं करता हूँ तो एक्सेप्शन आएगी कि इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक का मतलब ही होता है कि आप सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हो मल्टीपल थ्रेड्स के बीच, यानी कि वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक में थ्रेड तभी आता है जब उसको ऑब्जेक्ट का लॉक मिलता है, ठीक है, मॉनिटर लॉक बोलते हैं जिसे। सिंक्रोनाइज ब्लॉक यहाँ भी लिखना पड़ेगा मुझे। इसके अंदर फ्रेंड्स दिस पैरामीटर पास करते हैं, मैंने बताया था कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक होता है ये। सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर हम दिस पैरामीटर अगर पास कर होते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट का यहाँ पे लॉक, उस ऑब्जेक्ट का लॉक होता है। ये जो दिस पैरामीटर पास करते हैं सिंक्रोनाइज के अंदर, तो यानी कि करंट ऑब्जेक्ट जो बनता है उस ऑब्जेक्ट का लॉक होता है, जिसे हम मॉनिटर लॉक भी बोलते हैं। तो वो थ्रेड को एक्वायर करना पड़ता है, तभी वो इस ब्लॉक के अंदर एंटर करता है और कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे काउंट प्रिंट कराना है। काउंट ऑड होगा यहाँ पे, काउंट कैसा होगा यहाँ पे? ऑड होगा 1 3 5, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सेप्शन देख लेता हूँ, मुझे अभी वेट को यहाँ पे बंद हो गया है सारे ब्लॉक्स। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पर नंबर को 10 रखा है, यानी कि 10 तक चलेगा काउंटर। अभी मैंने काउंटर को देखो प्लस नहीं किया है, काउंटर को मुझे इंक्रीमेंट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो काउंटर को इंक्रीमेंट कराने के लिए मैं यहाँ पे जब प्रिंट करा रहा हूँ काउंट को, तो काउंटर को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे। और मैंने एक चीज और नहीं करी है, नोटिफाई
फ्रेंड्स नोटिफाई मेथड मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी बिकॉज एक्सेप्शन आएगी। ओके, वेट मेथड यूज है तो नोटिफाई मेथड भी यूज होगा। नोटिफाई मेथड का मतलब क्या है कि अगले थ्रेड को मिलने के लिए, उस ब्लॉक को एक्सेस मिलने के लिए वो तभी एंटर करेगा अगला थ्रेड जब नोटिफाई मेथड कॉल होगा। तो नोटिफाई मेथड से जो करंट थ्रेड होता है वो अपना लॉक रिलीज करता है। ओके, फर्स्ट थ्रेड अगर एंटर किया है तो उसको वो वेट मेथड पे, तो उसको वेट मेथड जब कॉल हुआ तब तो उसने लॉक एक्वायर कर दिया, ठीक है, उस थ्रेड ने। लेकिन जब नोटिफाई मेथड मिलेगा उस थ्रेड को, तो वो अपना थ्रेड अपना लॉक भी रिलीज करते हुए जाएगा, उसका अपना टास्क खत्म करके वो रिलीज भी करेगा लॉक को, वो लॉक दूसरे थ्रेड को मिलने के लिए। तो नोटिफाई भी यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा मुझे। ओके, काउंट प्लस प्लस बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा काउंटर को, और यहाँ पे नोटिफाई मेथड भी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और स्लीप मेथड तो पता ही है, थ्रेड क्लास का होता है, स्टैटिक मेथड है। स्लीप मेथड में हम टाइम रखते हैं, टाइम मिली सेकेंड में होता है, यानी कि हम अगर 1000 मिली सेकेंड कर रहे हैं तो वो 1 सेकेंड 1000 मिली सेकेंड होता है, तो वो 1 सेकेंड हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम कितने टाइम तक थ्रेड को स्लीप में डाल सकते हैं, यानी कि स्लीप में लॉक नहीं लगता है स्लीप मेथड में, ठीक है, वो उतने टाइम तक थ्रेड स्टॉप हो जाता है, मतलब पॉज हो जाता है थ्रेड, लॉक नहीं ले जाता है। तो लॉक वेट मेथड में ले जाता है। ठीक है, बस अब मुझे 2 थ्रेड क्रिएट करने हैं, वो मेन मेथड में होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो मेरी पब्लिक क्लास है, टेस्ट एप्लीकेशन। टेस्ट नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, न्यू टेस्ट एप्लीकेशन। मुझे 2 थ्रेड्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं रनेबल इंप्लीमेंट करूंगा। कैसे, देखिए, T1 थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया पहले थ्रेड का, न्यू, इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर रनेबल इंटरफेस होता है, तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट मैं इस तरीके से भी एक एनोनिमस क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, बट उसमें हम क्या करते हैं, देखिए, थ्रेड का ऑब्जेक्ट जब मैंने बनाया थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, तो उस जो थ्रेड का कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैं न्यू रनेबल लिखूंगा, रनेबल इंटरफेस है। ठीक है, न्यू रनेबल, और उसके मैं ये ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ इंटरफेस का, ये एनोनिमस क्लास होती है जिसका विदाउट एनी क्लास विच हैज़ नो नेम, जिसका नाम ही नहीं है कोई। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है ये, बट एक थ्रेड कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक एनोनिमस क्लास रनेबल इंटरफेस के नाम से ऐसे बनाया कि उसको मैंने न्यू के जरिए, उसके बाद उस पर उसकी मैंने डेफिनेशन दी है रनेबल इंटरफेस की। ये केवल एक, ठीक है, ये कह रहा है कि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, यानी कि रनेबल इंटरफेस में रन मेथड होता है, उसको ओवरराइट करो। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने थ्रेड कंस्ट्रक्टर के अंदर एक एनोनिमस क्लास बनाई है। एनोनिमस क्लास फ्रेंड्स मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाई थी, बट ये कहिए कि ये एक क्लास होती है विच हैज़ नो नेम, यानी कि उसी टाइप की एनोनिमस क्लास टाइप की बना रखी है मैंने इसको, कि रनेबल इंटरफेस का मैंने न्यू से बना रखा है, बट उसके आगे मैंने देखिए सेमीकोलन नहीं दिया। सेमीकोलन देता तो उसका ऑब्जेक्ट, बट मैंने इसकी यहाँ पे कर्ली ब्रेस के साथ इसके अंदर डेफिनेशन दी है, यानी कि ये रनेबल इंटरफेस की केवल डेफिनेशन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है रनेबल इंटरफेस का। ठीक है, क्योंकि रनेबल इंटरफेस है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है इंटरफेस का। ठीक, मैंने डेफिनेशन दी है यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि कंपाइलर की रन मेथड ओवरराइट करो। तो रन मेथड के अंदर क्या होता है, थ्रेड लॉजिक होता है, हम लॉजिक लिख सकते हैं रन मेथड के अंदर जो भी थ्रेड का। तो मैं क्या लॉजिक, मैं अपना मेथड प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहले थ्रेड का, तो मैं यहाँ से जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है टेस्ट, इससे मैं अपना इवन नंबर वाला जो मेथड है इसका वो कॉल कर सकता हूँ। तो रन मेथड के अंदर मैंने लॉजिक लिख दिया, मैंने एक मेथड कॉल कर दिया इवन नंबर। ठीक है, अब फिर से मैं यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस करूंगा। ठीक है,
कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ तक, थ्रेड T1 तक, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। थ्रेड T1 की जगह मैंने थ्रेड T2 कर दिया। ये दूसरा थ्रेड है, सेम प्रोसेस है। देखिए थ्रेड कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने रनेबल नाम से मैंने न्यू रनेबल इंटरफेस किया और उसकी डेफिनेशन कर्ली ब्रेस के साथ दे दी, जिसमें रन मेथड ओवरराइड किया और अपना लॉजिक लिखा। मैंने उस अपनी जो मेरी जो मेन क्लास है टेस्ट एप्लीकेशन, उससे मैंने एक मेथड कॉल कर दिया, इवन नंबर का किया था, अब मैं करूँगा ऑड नम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये मेथड भी कॉल कर दिया। ठीक है, रन मेथड के अंदर मैंने लॉजिक प्रिंट। अब इन थ्रेड्स को क्या करना है मुझे, इन थ्रेड्स को मुझे स्टार्ट करना है, तो T1 डॉट स्टार्ट। देखिए फ्रेंड, दो थ्रेड्स के साथ मुझे इवन ऑड नंबर का सीक्वेंस प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं, बट इसमें मैं दोनों थ्रेड को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, दोनों थ्रेड को स्टार्ट करने के बाद फिर ये आ गया आपका मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। तो इसी में ही मल्टी थ्रेडिंग लगी हुई है, इसी में मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में ही सिंक्रोनाइजेशन, आपस में मल्टीपल थ्रेड्स के बीच सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सिंक्रोनाइज के अंदर दिस आप लिखोगे तो वो उस ऑब्जेक्ट का लॉग थ्रेड होल्ड करता है। ठीक है, थ्रेड को उस ऑब्जेक्ट का लॉग मिलता है। तो दिस का मतलब सेम, जो एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट, सो दिस का मतलब क्लास का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे T2 डॉट स्टार्ट। ठीक है, मैंने दो थ्रेड्स स्टार्ट कर दिए। अब फ्रेंड्स चलिए देखते हैं मेरा क्या सीक्वेंस में प्रिंट हुआ है, इवन ऑड। लेट्स रन दिस एप्लीकेशन। यस फ्रेंड्स, देखिए 1 से लेकर 10 तक मेरे को मिला है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में काउंट इवन काउंट आउट कर रखा था मेथड के अंदर, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं इन्हें हटा करके फिर आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने हटा दिया काउंट इवन काउंट आउट, जो मुझे नहीं लगाना था मेथड के अंदर। रन करते हैं, देखिए 1 to 10 में मेरे सीक्वेंस में प्रिंट हो गए, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरीज आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जावा 8 फीचर्स के बारे में लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।